हेलो एवरीवन, वेलकम टू एग्जाम नेस्ट। दिस इज अजय शर्मा। आज हम लॉजिकल रीजनिंग एंड डेटा इंटरप्रिटेशन पर बेस्ड एक सेट डिस्कस करने वाले हैं। ये सेट प्रीवियसली कैट 2017 में स्लॉट 1 में पूछा गया था। एप्लीकेंट्स फॉर द डॉक्टरल प्रोग्राम्स ऑफ एमबी इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग AIE and BAMBI Institute of Engineering BIE have to appear for a common entrance test CET. The test has three sections: physics represented by P, chemistry represented by C, and maths represented by M. Among those appearing for CET, those at or above the 80th percentile in at least two sections and at or above the 90th percentile overall are selected for Advanced Entrance Test AET, conducted by AIE. AET is used by AIE for final selection. For the 200 candidates who are at or above the 90th percentile overall based on CET, the following are known about their performance in CET. First point, no one is below the 80th percentile in all three sections. Second point, 150 are at or above the 80th percentile in exactly two sections. Third point, the number of candidates at or above the 80th percentile only in P is the same as the number of candidates at or above the 80th percentile only in C. The same is the number of candidates at or above the 80th percentile only in M. Fourth point, number of candidates below 80th percentile in P is to number of candidates below 80th percentile in C is to number of candidates below 80th percentile in M is equal to 4:2:1. BIE uses a different process for selection. If any candidate is appearing in the AET by AIE, BIE considers their AAT score for final selection provided the candidate is at or above the 80th percentile in P. Any other candidate at or above the 80th percentile in P in CET but who is not eligible for the AET is required to appear in a separate test to be conducted by BIE for being considered for final selection. Altogether, there are 400 candidates this year who are at or above the 80th percentile in P. 4 क्वेश्चंस आपके सामने हैं। मैं सजेस्ट करूंगा कि वीडियो को पॉज करके आप पहले सेट को खुद सॉल्व करें और बाद में आप इसका सॉल्यूशन देखें। अप्रॉक्सीमेटली इस सेट को सॉल्व करने में आपको 10 to 12 मिनट्स का टाइम लेना चाहिए। ये सेट एक इंटेंस लेवल का सेट है। सेट को सॉल्व करने के लिए हमें वेन डायग्राम का सहारा लेना होगा। मैं आपसे हमेशा कहता हूं कि जब भी वेन डायग्राम के क्वेश्चंस आप देखें कैट के एग्जाम में, मान के चलें कि आपको केयरफुल होना ही है। वहां पर वैल्यूज जो होंगी उनको बहुत सावधानी से आपको जो एरियाज हैं या रीजन्स हैं उनमें लिखना है। कई बार इक्वेशंस आपकी फॉर्म होंगी, उन इक्वेशंस को समझदारी से धीरे धीरे आपको सॉल्व करते हुए आगे बढ़ना है। यहाँ पर दो कॉलेजेस की बात हो रही है, AIE और BIE। एक एंट्रेंस टेस्ट की बात हो रही है जिसका नाम है CET। 3 सेक्शन है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स। ठीक है। 80th percentile in at least two sections and at or above the 90th percentile overall are selected for advanced entrance test. Now 80th percentile in at least two sections मतलब या तो दो में या दो से ज्यादा के sections में and 90 percentile overall। ठीक है, यानी यहां पर 90th percentile और above दो कंडीशन चाहिए आपको शॉर्टलिस्ट होने के लिए, जो कि है एडवांस एंट्रेंस टेस्ट AET। तो CET एक बेसिक लेवल का टेस्ट हो गया, AET एडवांस लेवल का टेस्ट हो गया। AET की एक ही शर्त है, अच्छे से याद रख लें, ओवरऑल 90th परसेंटाइल या उससे ज्यादा होनी चाहिए और कम से कम दो सेक्शंस में 80th परसेंटाइल या उससे ज्यादा होनी चाहिए। ठीक है। अब यहां पर कुछ जानकारी हमें गिवन है। 200 कैंडिडेट्स जिनका who are at or above the 90th percentile the following are known। तो सबसे पहली जानकारी हमारे पास में है कि 90th percentile and above। तो हम एक काम करते हैं यहाँ पर, क्योंकि हम बात कर रहे हैं सेक्शंस की, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स की, तो हम यहाँ पर एक वेन डायग्राम कंस्ट्रक्ट कर लेते हैं। यहाँ पर वेन डायग्राम हमारे पास में है। 200 कैंडिडेट्स ऐसे हैं who are at or above the 90th percentile। ये रेक्टेंगल उन 200 स्टूडेंट्स को रिप्रेजेंट कर रहा है। आगे क्या जानकारी दी गई है, इन 200 स्टूडेंट्स की ओवरऑल या तो दे आर एट 90th परसेंटाइल या अबव है। फर्स्ट पॉइंट, नो वन इज बिलो 80th परसेंटाइल इन ऑल थ्री सेक्शंस। लेट अस से ये सर्कल रिप्रेजेंट कर रहा है फिजिक्स में 80th परसेंटाइल है उसके अबव वाले स्टूडेंट्स को, ये सर्कल रिप्रेजेंट कर रहा है केमिस्ट्री में 80th परसेंटाइल या अबव को, और ये सर्कल रिप्रेजेंट कर रहा है मैथमेटिक्स में 80th परसेंटाइल या अबव को। जो फिजिक्स के सर्कल से बाहर है उसके फिजिक्स में 80th परसेंटाइल से कम है।
जो केमिस्ट्री से बाहर है उसके उसमें कम है, और जो मैथ से बाहर है उसके कम है। ये वाला रीजन वो है जो कि फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ्स तीनों सर्कल से बाहर है, मतलब ये वो वाले स्टूडेंट्स हैं जिनकी तीनों ही सेक्शंस में 80th परसेंटाइल से कम है। पर क्वेश्चन कह रहा है ऐसे एक भी स्टूडेंट नहीं है, दैट मीन्स ये वाली वैल्यू हमारी क्या होगी, 0। इन 200 स्टूडेंट्स में जिनकी 90th परसेंटाइल या अबव है, इनके तीनों ही सेक्शंस में बिलो 80 परसेंटाइल हो, ऐसा एक भी स्टूडेंट नहीं। 150 are at or above the 80th percentile in exactly two sections. Okay, exactly two section हम बात कर रहे हैं इसकी, ठीक है। अगर हम इसको लेटर से A मान लें, इसे हम B मान लें और इसे हम C मान लें, तो सबसे पहली इंफॉर्मेशन हमारे पास आ गई है A प्लस B प्लस C इज इक्वल टू 150। 150 ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो या तो 80th परसेंटाइल है या 80th से ज्यादा परसेंटाइल है, एग्जैक्टली टू सेक्शंस। ओके, व्हाट अबाउट दिस पार्ट, लेट अस से इसको हम मान लेते हैं D। ये रिप्रेजेंट कर रहा है उन स्टूडेंट्स को जिनके तीनों ही सेक्शंस में 80th परसेंटाइल या उससे अबव है एंड ओवरऑल 90th परसेंटाइल या उससे अबव है। ओके, तो ये वाली जानकारी भी हो गई है। The number of candidates at or above the 80th percentile only in P, हम बात कर रहे हैं इसकी, is the same as the number of candidates at or above the 80th percentile only in C, that means ये वाली वैल्यू, the same is the number of candidates at or above the 80th percentile only in M, that is ये वाली वैल्यू। ये तीनों आपस में इक्वल है। लेट अस से इसको हमने ले लिया है x, ये भी हो गया है x और ये भी हो गया है x। चलिए, ये एक जानकारी और हो गई है हमारे पास में। अच्छा, यहां से एक चीज समझ में आ गई, आगे पॉइंट बढ़ने से पहले इन सब का सम कितना होना चाहिए, 200। तो एक काम करते हैं, इनको ऐड करते हैं, तो 3x प्लस a प्लस बी प्लस सी प्लस डी। नाउ a प्लस बी प्लस सी 150 है, तो a प्लस बी प्लस सी की जगह हम लिख देते हैं 150 प्लस डी इज इक्वल टू 200। 150 उधर चला जाएगा तो हमारे पास 3x प्लस डी इज इक्वल टू 50। ये एक इक्वेशन हमारे पास आ गई, करेक्ट। चलिए नेक्स्ट इंफॉर्मेशन पे नजर डालते हैं। नंबर ऑफ कैंडिडेट्स बिलो 80th परसेंटाइल इन पी। नाउ बिलो 80th परसेंटाइल मतलब जो पी के सर्कल से बाहर है, वो कौन कौन है, x, a और x। तो हम बात कर रहे हैं 2x प्लस a की। ओके, नंबर ऑफ कैंडिडेट्स बिलो 80th परसेंटाइल इन सी। 80th परसेंटाइल इन सी से 80th परसेंटाइल बिलो होने वाले लोग हैं ये वाले जो सी के सर्कल से बाहर है, यानी कि 2x प्लस b। ओके, 2x प्लस b एंड नंबर ऑफ कैंडिडेट्स बिलो 80th परसेंटाइल इन M, दैट मींस हम बात कर रहे हैं 2x प्लस c की। इनका रेशियो है 4:2:1। एक काम करते हैं, इसे अज्यूम कर लेते हैं 4k, इसे अज्यूम कर लेते हैं 2k एंड देयरफॉर ये क्या हो जाएगा k। यहाँ पर k कोई कांस्टेंट है जिसकी वैल्यू हमें मालूम नहीं है, ठीक है। तो 4k 2k एंड k, पर ध्यान रखिएगा k जो है वो इंटीजर होना चाहिए, बिकॉज ये बात कर रहा है नंबर ऑफ कैंडिडेट्स की, वो डेसिमल में नहीं हो सकते। अच्छा, अगर हम तीनों को ऐड कर लें तो क्या होगा, तो ये हो जाएगा 6x प्लस a प्लस b प्लस c दैट इज 150 इज इक्वल टू 7k। इसका मतलब हुआ अगर हम इसको k के लिए सॉल्व करें, एक काम करते हैं, क्योंकि k इंटीजर होना चाहिए, 6x को हम लिख देते हैं 7x और यहां पर माइनस x कर देते हैं। 150 को हम लिख देते हैं 147 और यहां 3 लिख देते हैं। और इस पूरे को अगर हम 7 से डिवाइड करें तो हमारी वैल्यू क्या आ जाएगी, k, करेक्ट। नाउ 7x को 7 से डिवाइड करेंगे तो लेट अस से यहां पर हम लिख देते हैं k की वैल्यू क्या हो जाएगी, 7x अपॉन 7 दैट इज x प्लस 147 अपॉन 7 दैट इज 21 प्लस 3 माइनस x अपॉन 7। नाउ ये तो ऑलरेडी इंटीजर है, हम चाहते हैं ये वाला पार्ट भी इंटीजर हो जाए, दैट मींस 3 माइनस x शुड बी अ मल्टीपल ऑफ 7, ठीक है। अब x और d की वैल्यूज तो यहां पर आ गई है, थोड़ा सा हिट एंड ट्रायल से हमें पता चल जाएगा, अगर हम x की जगह 0 पुट कर दें
तो हमारा काम नहीं बनेगा। पर अगर x की जगह 3 पुट कर दें तो 3 माइनस 3 करने पर 0, यानी ये वाला पार्ट हट गया। तो अब हमारे पास में जो नंबर आएगा वो इंटीजर आएगा। या अगर हम x की जगह 10 लिख दें तो सो 3 माइनस 10 ये हो गया -7 और 7 7 से डिविजिबल है। x की जगह 17 लिख दें तो भी हमारा काम हो जाएगा, बिकॉज 3 माइनस 17 -14 एंड -14 फिर 7 से डिविजिबल है। तो x की जो पॉसिबल वैल्यू इस पार्ट को इंटीजर बनाएगी, पॉजिटिव या नेगेटिव वो फर्क नहीं पड़ता, वो होंगी 3, 10, 17, मतलब 3 के बाद 7 ऐड किया, फिर 10 ऐड 7 ऐड किया एंड सो। क्या हम x की वैल्यू 3 यहां पुट कर सकते हैं? देखिए, अगर हम x की वैल्यू यहां पर 3 पुट करें तो 3 इंटू 3 9, तो हमारा d जो है वो हो जाएगा 41। ठीक है, ये अलाउड है, कोई दिक्कत नहीं है। अगर हम x की जगह 7 पुट करें तो 10 पुट करें तो 10 इंटू 3, x की जगह जैसे ही हमने 10 पुट किया ये हो गया 30, तो d की वैल्यू आ गई 20। ठीक है, अभी तक कोई दिक्कत नहीं है। पर 17 नहीं पुट कर सकते, बिकॉज 17 इंटू 3 51, उस केस में d -1 हो जाएगा, नंबर ऑफ कैंडिडेट्स नेगेटिव नहीं हो सकते। तो x की दो पॉसिबल वैल्यूज आ गई हैं और d की दो पॉसिबल वैल्यूज आ गई हैं। x की दो वैल्यूज आ गई हैं तो क्या अब हम k की वैल्यू निकाल सकते हैं? देखिए, x की वैल्यू 3 यहां पुट कर दें तो ये हो जाएगा 21 प्लस 3 24, ये वाला पार्ट तो 0 हो गया। तो इससे हमारे पास में k की वैल्यू आ जाएगी 24। और अगर हम x इक्वल टू 10 पुट करें तो 21 प्लस 10 31, 3 माइनस 10 -7 अपॉन 7 -1, बी केयरफुल, 31 -1 करने पर यहां पर हमारे पास k की वैल्यू आ जाएगी 30। आपको बस यहां पर 10 पुट करना है और यहां पर एक माइनस हो जाएगा, तो 31 - 1 इज 30। ओके, अब हमारे पास में x आ चुका है, d आ चुका है और k आ चुका है। क्या हम बाकी जो वेरिएबल्स हैं उनकी वैल्यूज निकाल सकते हैं? जरा यहां पर देखिए, यहां a क्या होगा? a होगा 4k - 2x। यहां पर b क्या होगा? 2k - 2x। और यहां पर c क्या होगा? k - 2x। ठीक है, तो बस x की और k की वैल्यू पुट करेंगे, हम आसानी से a की, b की और c की वैल्यू भी निकाल सकते हैं। फर्स्ट केस, a की वैल्यू है 4k - 2x, 4 इंटू 24 96 माइनस 2x यानी 6, a की वैल्यू हो गई 90। b 2k - 2x, अच्छा -2x अब 6 हो चुका है, 2k 24 इंटू 2 48 माइनस 6 करेंगे तो ये वैल्यू 42। एंड नेक्स्ट c की वैल्यू हो गई है k - 2x, यानी 24 - 6 करने पर 18। व्हाट अबाउट दिस केस? a, b और c की वैल्यू हम यहां निकाल देते हैं। अगेन a की वैल्यू हो गई 4k - 2x, 30 इंटू 4 120 माइनस 20, ये हो गया है 100। b हो गया है 2k - 2x, 30 इंटू 2 60 माइनस 20, दैट इज 40। और c हो गया है k - 2x, दैट इज 30 माइनस 20, 10। हमारे पास में देखिए सारे वेरिएबल्स x की वैल्यू आ चुकी है, a b c और d चारों वैल्यूज आ चुकी है। k तो हमने सिर्फ ये a b c d निकालने के लिए हमने निकाला था। अब x की और a b c d की वैल्यूज अगर हम यहाँ पुट कर दें तो हमारे पास में दो वेन डायग्राम आ जाएंगे और अब हम क्वेश्चंस को आसानी से सॉल्व कर पाएंगे। हमारे पास दो वेन डायग्राम है, बस हमें यहाँ पर वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी होगी। सबसे पहले ये वाला केस लेते हैं, x की वैल्यू हम पुट कर देंगे 3, तो यहाँ पर x की वैल्यू हमने पुट कर दी है 3। ठीक है, ऐसे ही a की वैल्यू होगी 90, तो हम a की जगह लिख देंगे 90। b की वैल्यू 42 है, तो हम b की जगह लिखेंगे 42। c की जगह 18, सो विल राइट डाउन 18। और d की जगह वी विल राइट डाउन 41। ये 41 हमारा हो गया। आप एक बार क्रॉस चेक कर सकते हैं, 42 एंड 18 ये हो गया 60, 3 3 3 9, 9 एंड 41 ये 50, 60 प्लस 50 110 प्लस 90 इज इक्वल टू 200। चलिए दूसरा वाली जो वैल्यूज है वो हम यहाँ पर सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। सबसे पहले x की वैल्यू है 10, तो जहां भी हमने x लिखा है वहां पर हम लिख देंगे 10।
ओके, व्हाट अबाउट ए? ए है 100, तो ए की जगह हम लिखेंगे 100. बी, बी की वैल्यू है 40, सो विल राइट डाउन 40. सी, ये वैल्यू है 10, सो विल राइट डाउन 10. एंड डी, ये वैल्यू है 20, सो वी विल राइट डाउन 20. अब हमारे पास में जो दो वेन डायग्राम्स हैं वो बन चुके हैं, वैल्यूज लिख चुके हैं. क्वेश्चंस पे नजर डालते हैं. फर्स्ट क्वेश्चन, what best can be concluded about the number of candidates sitting for the separate test for BIE who were at or above the 90th percentile overall in CET? अगर हम BIE की बात करते हैं तो यहाँ पर हमें कंडीशन क्या गिवन है? BI uses a different process for selection. If any candidate is appearing for the AET by AIE, BI considers their AET score. और AET में अपीयर होने की शर्त क्या है? दो या दो से ज्यादा सेक्शंस में 80th या 80th परसेंटाइल से ऊपर से लाइए और ओवरऑल 90th परसेंटाइल या उससे ज्यादा ले आइए. For final selection, now provided the candidate is at or above the 80th percentile in P. Okay. Any other candidate at or above 80th percentile in P in CET but who's not eligible for AET. तो ये वो लोग होंगे जिनके सिर्फ पी में ही 80th परसेंटाइल या उसके ऊपर आए. तो यहां पर हम बात करने वाले हैं ओनली पी और ओनली, दोनों ही केसेस में 10 और 3. ये वो कैंडिडेट्स हैं जिनके पी में 80th परसेंटाइल या उससे ऊपर ज्यादा आए हैं और सी और एम में नहीं आए हैं. तो इसका मतलब है उन्होंने एक कंडीशन फुलफिल नहीं की जो कहती है कि मिनिमम दो में आपकी 80th परसेंटाइल एंड अबव आनी चाहिए, राइट. बट क्योंकि इनके 80th परसेंटाइल अबव है फिजिक्स में, ये बीआई का जो टेस्ट होगा उसके लिए बैठ सकते हैं. तो हमारे इस क्वेश्चन का आंसर क्या होना चाहिए? फर्स्ट ऑप्शन. नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ द नंबर ऑफ कैंडिडेट्स हु आर एट और अबव द 90th परसेंटाइल ओवरऑल, मतलब हम बात कर रहे हैं इन 200 कैंडिडेट्स की, and also at or above the 80th percentile in all three sections in CET, हम बात कर रहे हैं इन दो नंबर्स की, is actually a multiple of 5. अब हम इसकी बात नहीं कर रहे क्योंकि ये वाला नंबर 5 का मल्टीपल नहीं है. 20 जो है वो 5 का मल्टीपल है. What is the number of candidates who are at or above the 90th percentile overall, मतलब अगेन हम इनकी बात कर रहे हैं, and at or above the 80th percentile in both P and M in CET. P एंड M दोनों में 80th परसेंटाइल या उससे ज्यादा लाने वाले कैंडिडेट्स हैं. एक तो ये 40 और एक ये 20, राइट. केवल ओनली अगर बोलते तो हम 40 पे नजर डालते हैं, बट बोला है P एंड M बोथ, तो हमको दोनों को काउंट करना होगा. तो हमारे इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? 60. नेक्स्ट क्वेश्चन, if the number of candidates who are at or above the 90th percentile overall and also at or above the 80th percentile in all three sections in CET is actually a multiple of 5, अगेन हम इस केस की बात कर रहे हैं. Then how many candidates were shortlisted for the AET for AIE? AET में शॉर्टलिस्ट होने की शर्त क्या थी? दो सेक्शंस में 80th परसेंटाइल या अबव लाइए कम से कम, एंड ओवरऑल 90th परसेंटाइल या अबव लाइए. ये वो 10 कैंडिडेट्स हैं जिनके दो सेक्शन में, ये वो 40 कैंडिडेट्स हैं और ये 100 कैंडिडेट्स हैं जिनके दो सेक्शंस में 80th परसेंटाइल या अबव आई है, और ये 20 वो कैंडिडेट्स हैं जिनके तीनों ही सेक्शंस में 80th परसेंटाइल या अबव आई है. इन सबको ऐड कर लेंगे तो हमारे इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? 170. इस सेट पर बेस्ड लास्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं. इफ द नंबर ऑफ कैंडिडेट्स हु आर एट और अबव द 90th परसेंटाइल ओवरऑल and also are at or above the 80th percentile in P in CET is more than 100, how many candidates had to sit for the separate test for BI? सबसे पहली बात तो हम बात कर रहे हैं ओवरऑल 90th परसेंटाइल एंड अबव, मतलब ये दोनों केसेस कंसीडर होंगे यहां तक. तो also at or above the 80th percentile in P, मतलब हम बात कर रहे हैं P से जुड़ी हुई वैल्यूज की, is more than 100, हमें इसको रिजेक्ट करना होगा क्योंकि P में 80th परसेंटाइल और अबव लाने वाले अगर हम यहाँ पर देखें तो वो मेंबर्स होंगे 40 and 20, 60, 70, 80. हमें ये मोर देन 100 चाहिए. इस केस को हमें कंसीडर करना होगा. ठीक है. क्वेश्चन पूछा है हाउ मेनी कैंडिडेट्स हैड टू सिट फॉर द सेपरेट टेस्ट फॉर बीआई. सबसे पहले तो P में 80th परसेंटाइल और अबव लाने वाले कैंडिडेट्स कितने हैं? 400. ओके. तो शर्त क्या है बीआई के लिए कि आपको 80th परसेंटाइल और अबव लानी है P में, और आप AET के लिए शॉर्टलिस्ट नहीं होने चाहिए. अब यहाँ पर ये जो कैंडिडेट्स हैं इनकी 80th परसेंटाइल अबव आई है, पर अगर हम इन कैंडिडेट्स पे नजर डालें तो ये AET के लिए शॉर्टलिस्ट हो चुके हैं. क्यों?
क्योंकि इनके 2 या 2 से ज्यादा सेक्शंस में 80th परसेंटाइल या ज्यादा है और ओवरऑल इनकी 90th परसेंटाइल या ज्यादा है। तो ये लोगों को BIE का जो टेस्ट है उसमें बैठने की जरूरत नहीं है। ये कुल कितने लोग हैं? ये लोग हैं, यहाँ पर हमको काउंट करते हैं तो ये हो गए 101, ठीक है। और ये 3, यहाँ पर ये जो 3 कैंडिडेट्स हैं इन्हें तो टेस्ट में बैठना ही पड़ेगा क्योंकि ये शॉर्टलिस्ट नहीं हुए हैं और टोटल 400 है। उनमें से अगर हम 101 उन लोगों को हटा दें जो पी का पार्ट है पर जो शॉर्टलिस्ट हो चुके हैं फॉर AET, तो बाकी बचे हुए लोग कितने होंगे? 299 इंक्लूडिंग दीज 3। ये 3 भी उसी का पार्ट है। तो यहाँ पर कंफ्यूजन ना हो तो आप क्या करें, सबसे पहले देखें कि 80th परसेंटाइल एंड अबव पी में लाने वाले कैंडिडेट कितने हैं? 400। उनमें से ऐसे कितने कैंडिडेट हैं जो ऑलरेडी शॉर्टलिस्ट हो चुके हैं? वो है ये 3। अगर इनको ऐड करें तो ये वैल्यू है 101। आप इसे सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, आपके इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा 299। एक टफ सेट था। जनरल एग्जाम्स में इस तरह के सेट्स को हम तब सॉल्व करते हैं जब हमने अपने फर्स्ट राउंड में जो इजी सेट्स हैं वो अटेम्प्ट कर लिए हों और हमारे पास कुछ समय बचा हो जहां पर हम इस तरह के क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना चाहेंगे।